request you, all of you, please open your videos, possible. It will help us to make this webinar more interactive. Okay. So I can only request you. I cannot force you guys. So I will start. Good evening, everyone. Hope you all are well. Thank you for joining on a weekday. I think you understand the importance of this topic for which we are having a webinar today. And hopefully you will be able to get some good insights at the end of this event. So if you get some insight, I would request you all to please provide some feedback over the webinar so that we can improve or we can recollect next time. And moving on, I would like to start with my introduction first. I am qualified chartered accountant. My full name is Kanika Garg. I am based out of Delhi. I have experience of more than 6 years in fintech and banking industry. I have experience working with big brands like HDFC and NatWest Group. And I show my gratitude to CA Sumit Garg for giving me this opportunity to arrange this webinar and being a moderator. And extremely important session. Um, like if we are student or in job or in like homemaker or doing our own work, then we don't know how to deal some situations or day-to-day situations for mental health, and we face some challenges. So for this, why like we need some why we need this webinar, that due to increase some screen time and family demands and pressure of finance burden, so our mental pressure is getting increased day by day, due to which our emotional, psychological, and social well-being is affected. So I would give you a test at the end of this session. So in that way, you will be able to check your mental health. But for that, I would like to invite C.A. Pooja Garg. She is practicing chartered accountant based, Delhi based. And I have been seeing her like growing in multiple areas, and she is a career counselor nowadays, and uh, teaching students on how to choose a career. And I have been watching her out on the WhatsApp and on social medias, and she is extremely good in taxation also. And I asked her some queries too. And she is very good for this webinar. I hope she will give us good insights. So welcome to you, Pooja. You can take this Thank you. forward. Thank you so much, Kanika. Firstly, thank you so much, Kanika, for such lovely introduction. And a very good evening, everyone. Firstly, I'm very thankful to see Sumit Garg sir and Team CASA for giving me the opportunity to share my views on this very crucial topic. And this topic is regarding mental health. So, in today's world, mental health is basically like we recognize physical health, but we forget about mental health. We even don't realize the mental health. What is mental health? सो मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ इज लाइक हमें हम ये सोचते हैं कि वी आर हमें ना बात बात पे बहुत गुस्सा आता है, तो डेट इज वी आर। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमें मान लो फीवर है कि हमें मैं फीवर हूँ? हम ये नहीं सोचते, क्योंकि देखो ये एक बीमारी है, वो चली जाएगी। वैसे ही मेंटल हेल्थ का होता है कि जैसे स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस 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 को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। हम बस ये सोचते हैं, हमें हमें स्ट्रेस का मतलब ही नहीं पता। इन टूडेज वर्ल्ड हम ये सोचना अपने स्ट्रेस के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली स्ट्रेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। एक ऑफिस में 3 लोगों को डांट लगती है। तीन तीन पर्सन होते हैं, उनको डांट लगती है, तीनों एम्प्लॉयज होते हैं। तो उनको डांट लगती है, तो 2 पर्सन बोलते हैं कि सर का ना माइंड थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इट्स ओके। तो वो जाके अपना मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन जो 3rd पर्सन होता है, जो कि एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो जब उसको डांट लगती है तो वो ये सोचता है कि यार सर ने क्या बोला है मेरे बारे में, यानी कि मैं कुछ हुई नहीं।
मतलब वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि उसके बाद वो बैठ जाता है अपने काम करने के लिए, और वो उसके दिमाग, हमारा जो माइंड है ना, वो एक स्टोरी क्रिएटर होता है। हमारा मतलब माइंड इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज क्रिएट कर लेता है जो हमें पता ही नहीं होता। लाइक मुझे ये नहीं आता है, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। उसके बहुत सारी वो अपनी स्टोरीज माइंड जो होता है वो रिक्रिएट करता रहता है, रिक्रिएट करता रहता है, और अपने माइंड में हम इतनी सारी स्टोरीज बना लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ मेंटल हेल्थ, कि हम अपने माइंड में डिप्रेशन का अपने आप ही अपनी इतनी स्टोरीज बना रहे हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसके रिगार्डिंग भी हम स्टोरीज बना लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द मेंटल हेल्थ। हम अपने बारे में अपने आप ही कुछ नेगेटिव थॉट्स बोले जा रहे हैं, मतलब इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं। तो जो वो पर्सन होता है, थर्ड एम्प्लॉय होता है, जिसको जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो बैठ जाता है अपनी सीट पर, वही चीज सोचने लगता है। बाकी जो दो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना क्रिएटली अपना अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और जो फर्स्ट वन होता है, दैट इज कि ये क्या हो गया, मतलब मेरे को क्यों बोला, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मतलब मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो बैठ जाता है, फिर उसको सर में दर्द होने लगता है, फटीग हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो वो इतना बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है। तो डेट इज मतलब उसका अगर हमने वो क्यों हुआ, उसी के साथ क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है कि बचपन में एल्डर ब्रदर होते हैं हमारे, और उनसे हमारी कंपैरिजन की जाती है। तो क्या होता है कि हमारे माइंड में ना वही चीज, हमारे माइंड में वही चीज आ जाती है। तो ये हमारा हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे अब मेरा जो वेबिनार है, जो ये मेरी स्लाइड है, स्लाइड सबको शो हो रही है? यस, दिख रही है। तो बेसिकली व्हाट इज मेंटल हेल्थ? इट इज स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड हमारा जो स्टोरीज क्रिएट करता है, दैट इज कि हम किसी चीज को कैसे ले रहे हैं, किसी चीज को हम नेगेटिवली ले रहे हैं या पॉजिटिवली ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक क्लास में जाते हैं, तो एक ग्लास ऑफ वाटर, वो 3 ग्लास ऑफ वाटर चूज कर देते हैं बच्चों को। तो बोलते हैं कि आप इसको कितनी देर होल्ड कर सकते हो। तो उनमें से एक स्टूडेंट होल्ड कर लेता है उसको, तो वो काफी देर तक उसे होल्ड करके रखता है, उसको कुछ नहीं होता, वो कहता है कुछ नहीं हुआ। सेकंड पर्सन उसे होल्ड करता है, तो उसको ना थोड़ा थोड़ा शोर हो जाता है उसका ये। फिर वो थर्ड जो थर्ड स्टूडेंट होता है वो होल्ड करता है, तो उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। तो यही है कि अगर वो फिर सर समझाते हैं कि दैट इज द पॉइंट ऑफ कि आप उसे कैसे होल्ड कर रहे हो, कितनी देर आप स्ट्रेस को कितनी देर होल्ड कर रहे हो। अगर आप इसे बहुत देर तक होल्ड कर रहे हो, तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, आप पूरी रात उसी की चीज के बारे में सोचने लग जाते हो बेसिकली। तो दैट इज so, according to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आप फिजिकली भी सही हो, मेंटली भी सही हो, एज वेल एज सोशल वेलबींग भी ठीक हो। ये नहीं कि खाली आपके आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप सही हो, आपको मेंटली भी ठीक होना पड़ेगा। दैट इज द हेल्दी, मतलब WHO ने मेंटल हेल्थ की स्टेटमेंट ये दी है। तो मतलब मेंटल हेल्थ इज स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट कि हम कोप में स्ट्रेस से कैसे कर रहे हैं, स्ट्रेस के साथ हम डीलिंग कैसे कर रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर होता है कि वो जो कुछ जैसे उनके पास कोई चीज आई, तो वो इमोशनली उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे मान लो हम सीए बने, तो सीए तो एक बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए, तो हम उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। लाइक कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही छोटी सी चीजों में, मतलब बहुत ही छोटी सी चीजों में अपने आप को बहुत, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को कैसे दिखा रहे हैं लोगों को, और या फिर हमारे अंदर कोई एबिलिटी है उसको कैसे शो कर रहे हैं। दैट इज द मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटली ठीक है, तो हम उसी काम को, प्रोडक्टिविटी हमारी जो है ना वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूरी रात किसी टेंशन को सोचते रहे, तो हमने हाउ होल्ड द प्रॉब्लम, हमने उस प्रॉब्लम को कैसे होल्ड किया, और हम उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते जा रहे हैं, बस सोचते जा रहे हैं। तो अगर हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें रात में नींद नहीं आएगी, और अगले दिन हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, ऑफिस के हार्स है, वो हमारे बिल्कुल खराब हो जाएंगे। हम मतलब 8 आवर्स का वर्क भी 8 आवर्स, मतलब 4 आवर्स का वर्क भी 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। दैट इज अ मेंटल प्रॉब्लम। कि हमें हमारे जो मेंटल, देखो अब हम बोलते हैं कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो उससे कैसे निकल सकते हैं। दैट इज फिजिक नॉट फिजिकल प्रॉब्लम, दैट इज अ मेंटल प्रॉब्लम, राइट। तो जैसे मैंने बोला कोविड स्ट्रेस, तो इसमें हमें एक चीज पता लगनी चाहिए कि हमें स्ट्रेस से बहुत दूर रहना है। हालांकि एवरीबॉडी हैज स्ट्रेस रिलीफ प्रॉब्लम, कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को
खत्म कर सकते हैं। सबके अपने अपने सबका अपना अपना वो होता है कि वो कैसे उसको खत्म कर सकता है। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एड ऑन करूंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो वही, तो नॉर्मल इंडिविजुअल कैसे करता है सारी चीजें। तो नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है, एक तो हमें ना अपने जो करियर ओरिएंटेड है, हम मान लो आजकल सब करियर ओरिएंटेड है, ना वो फैमिली को टाइम देते हैं, ना वो मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, डेट इज पक्का से कोई वो स्ट्रेस में है। लाइक आज हम वही काम 9 to 5 में कर सकते हैं ऑफिस का, बट हम 8:30 ऑफिस आ जाते हैं और 10:30 ऑफिस जा रहे हैं रात को। तो हम इसका मतलब हमारे अंदर कोई कुछ चल रहा है, हम फैमिली से बात नहीं, हम फैमिली से छिपा रहे हैं कुछ, मतलब हम उनसे बात करना। आजकल यही प्रॉब्लम है कि हम 90s के चाइल्ड है, जब हम बॉर्न हुए थे तो हम जो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलते थे, उनसे बातें करते थे, शेयर करते थे। आजकल क्या प्रॉब्लम इज दैट कि आइसोलेशन, आइसोलेशन एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। आइसोलेशन की वजह से हम ना किसी से बात करते हैं, हम सोशली कनेक्टेड होने में भी घबराते हैं बहुत ज्यादा। जैसे सेल्फ एस्टीम एंड एक्सेप्टेंस, अगर हम अपने आप को जाने कि हमारा हम चाहते क्या है, हम हमारी मतलब देखो, सेल्फ आप हमेशा अपने आप को नहीं जान सकते, इट इज द प्रोसेस। आपको टाइम लगता है अपने आप को भी जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बारे में एवरीथिंग सब कुछ पता है। अगर आप कभी मेडिटेशन करो, तो आप सोचना आपके माइंड में ना, आपके माइंड में इतनी सारी मतलब अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो मेडिटेशन की, तो आपके माइंड में इतनी सारी चीज चलने लगती है कि वो छोड़ के आपके माइंड में ये थॉट मतलब वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे हमारे मान लो हमारे से कोई इम्प्लॉई है और हम उसके साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है, हमारी उससे मान लो किसी बात पे कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो गई है, तो हम उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, और हालांकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं हमारी। तो वही चीज हमारे हमें डिप्रेस कर जाती है। अच्छा, एक नॉर्मल वेलबींग कैसा होता है, वो रियलिटी ओरिएंटेशन होता है कि आप वो ऐसे गोल चूज करेगा जो कि अचीवेबल हो। अब मैं सोचूं कि मुझे ना ये काम करना है, कोई भी मतलब मैंने अनअचीवेबल गोल अपना बना लिया है, तो मैं उस अचीवेबल गोल को जाने के लिए मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं फिर यही सोचूंगी कि मैंने ये किया नहीं है। बल्कि हमें ना क्या करना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए अपने, कि हम ताकि उससे हमारा फर्स्ट गोल हुआ, हमने वो अचीव कर लिया, देन सेकंड। क्योंकि वरना हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि यार मैं ही कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे अंदर ही कुछ नहीं है अपने। और अपने आप को ना इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। इमोशंस, अगर हम ज्यादा खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो वो भी एक हम वेल बीइंग है हमारा फिजिकल बिल्कुल ठीक है, अगर हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो। और अपने रिलेशनशिप में बात करनी चाहिए कि हमें कैसे बात करनी है, क्या है सारी चीजें। सो पहले मैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो फर्स्टली हमें ना अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस होता कैसे है। स्ट्रेस के हमारे सोर्स होते हैं कि हमारा स्ट्रेस क्यों होता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, टेक्निक क्या होती है मैनेज की, और इफेक्ट क्या है। तो मैं इफेक्ट पर ज्यादा फोकस करूंगी कि हमें इसे मैनेज कैसे करना चाहिए। तो स्ट्रेस क्या है, वो मेंटल, फिजिकल और इमोशन रिएक्शन होती है हमारी डिमांड। या तो हमारे पास कोई ऐसी डिमांड आ गई है जो उसके लिए फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, या हमें पता है कि हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उसको पूरा करने के लिए, या फिर हमें उस बेसिकली स्ट्रेस इज नथिंग, जस्ट मैटर ऑफ हाउ टू डील विद दिस। लाइक कि हमें डिफिकल्टी है इस चीज को पूरा करने में, ठीक है। तो उसी से हमारा स्ट्रेस आता है बेसिकली, कि हमारे पास उस चीज को करने के लिए वो उस चीज को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तभी हमें स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। तो हमारे थ्रेड्स क्या क्या है, जैसे मान लो अब मेरे को क्या थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, मेरे को स्ट्रेस कैसे हो सकता है, मेरी मेंटल हेल्थ कैसे खराब हो सकती है। या तो मुझे डर है कि मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर में लॉस हो सकता है बिजनेस में। लाइक मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो गई हूँ और मैंने लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर ली हैं बहुत सारी, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि जहां मैं हूँ वहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, और मैं जस्ट सोच रही हूँ बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कि मुझे लग रहा है कि मेरा ये बंदा मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आपसे।
तो तब भी हमें स्ट्रेस होता है। तो हमें ना क्या करना चाहिए, हमें उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मतलब हम जैसे भी हैं परफेक्ट है, हमें ये सोचना चाहिए। और हमें ना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रेदर देन हम प्रॉब्लम में घुसे जा रहे हैं। हम पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि भाई मेरे अगर मैंने ये कर लिया होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा सिलेक्शन श्री राम कॉलेज में हो गया था, तो मैं वही वहीं पे अटकी रहती कि भाई मैंने श्री राम कॉलेज क्यों छोड़ दिया, काश मैं वहां पे जाती, फिर मैं वही चीज सोचती रहूंगी। तो हमें ना वो चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, राइट। तो डेट इज उससे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। जैसे नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमें, क्यों होती है फ्रस्ट्रेशन, हम चारों तरफ नेगेटिव थॉट्स ही देख रहे हैं, या फिर हम किसी चीज को लाइक नहीं करते, वो हमारे साथ बार बार हो रही है। पीपल हमें डिस्करेज करते हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते ये काम, ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है ये चीज। तो तब भी हमें वो हो जाती है, हमें उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और लाइक प्रेशर होता है हमारे पास, जो सेल्स मैनेजर होता है उसके पास सेल्स टारगेट का मैनेजर वो होता है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट्स के लिए होता है, सर्वाइवल, ग्रोथ, रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं हमें, ठीक है, परफॉर्मेंस, हमें परफॉर्म बेटर करना है, कल से बेटर आज परफॉर्म करना है, सोसाइटी प्रेशर, सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है, लाइक शादी कर लो, शादी का प्रेशर होता है लोगों पे, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। अभी मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेस कैसे होता है, फिर मैं इसको मैनेज करने के तरीके भी बताऊंगी। इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ताकि स्ट्रेस वैसे सबको पता ही है, स्ट्रेस सबको होता ही है, मैनेज करने के तरीके में मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊँ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वर्क लाइफ मैनेजमेंट हमारी नहीं हो पाती अच्छे से, या फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, हम दूसरे बंदे ने जो किया हम वो करना चाहते हैं, और फिर हमारे एम्प्लॉयज रिलेशनशिप बेकार हो जाते हैं, ठीक है। टाइम स्ट्रेन होता है बहुत लोगों के साथ, तो फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या फिर प्रायोरिटीज नहीं दे पा रहे किसी चीज को। अच्छा एक चीज और, हम ना अर्जेंट वर्क पे फोकस नहीं करते, हम रेदर देन फोकस ऑन अर्जेंट वर्क रेदर देन इम्पोर्टेंट वर्क। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अब जैसे एक क्लाइंट ने मुझसे बैलेंस शीट मांगी, ठीक है, उसने मुझे एक दिन पहले बोल दिया, मुझे मुझे ईयर एंड भी सितंबर में सारा रिटर्न फाइल करके उसे बैलेंस शीट प्रोवाइड करा देनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट टास्क है, तो मैं उनमें लग गई, मैंने वो चीज छोड़ दी। लेकिन जब क्लाइंट एक दिन, मालूम उसे अर्जेंट आज ही चाहिए 2 मिनट के अंदर, उसने मुझे फोन किया कि मुझे आज ही आपकी बैलेंस शीट, मुझे आज ही बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है, तो हमारे लिए वो चीज उस टाइम पे देनी अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, या फिर हम कहीं फंसे हुए। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ऐसा बहुत बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। तो हम उसमें भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब मैं इसे कैसे दूं, वो तो मेरे पीछे लग गया है। तो इस तरह से हम अर्जेंट वर्क पे फोकस ना करके इंपॉर्टेंट वर्क पे करते हैं, हमें एक पूरा वो बनाना चाहिए कि हमें काम टाइम से करना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क को दोनों को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो वो भी हमारा उसका वो हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबको पता ही है, वो स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज होती है कि मतलब हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमें चेंज न्यू चीज आ रही है, जैसे कोई मान लो एक न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, अब ऑफिस में न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, तो उसको हम वो नहीं कर पा रहे, कोप नहीं कर पा रहे उसके साथ में, तब भी हमें स्ट्रेस आ जाता है। अब हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, पहले तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इफेक्ट वही होते हैं, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हमें हुआ क्या है। जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है कि वो बैठे बैठे प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। वो सोचते हैं कि हमें नॉर्मल डॉक्टर की जरूरत है, और ये फिजिकल जो मेंटल हेल्थ है या स्ट्रेस है कुछ नहीं होता, ठीक है। पैनिक अटैक्स बहुत लोगों का मैंने सुना है, मतलब 90% लोगों को, मतलब लास्ट टाइम मैंने एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है मेरे पास, वो मैं शो करूंगी कि पैनिक अटैक्स बहुत आते हैं लोगों को। क्यों आते हैं, क्योंकि वही ये पता है क्या, धीरे 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 ये लॉन्ग स्टोरी बन जाती है लोगों की। तो आई साइट्स खराब हो जाती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम, क्या होता है कि रात को सो ही नहीं पाते, या फिर बहुत ज्यादा सो रहे हैं, या तो वो सो ही नहीं पाते लोग, या फिर हम जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, हम सो ही नहीं पा रहे, या फिर हम बहुत ज्यादा सोते हैं, वो भी एक डिप्रेशन ही होता है जो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जिसे हम, ठीक है। वेट गेन हो जाता है बहुत ज्यादा, देखा है कि जब आफ्टर, तो बहुत सारी चीज होती है, वेट गेन हो जाता है, वो भी स्ट्रेस होता है, वेट गेन स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा होता है। और वेट लॉस, किसी का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, ये भी इसका ही है। इमोशन साइंस क्या होते हैं, इमोशन साइन ये होते हैं डिप्रेशन, ठीक है, अनइंटरेस्टेड लाइफ लाइफ में मेरी कोई इंटरेस्ट, आजकल मतलब सुसाइड के इतने सारे केसेस हम सुनते हैं। तो वो भी हमारे जो इमोशनली हम समझ नहीं पाते कि हमें हो क्या रहा है, बट हम वो चीज सोचते हैं कि ये हम इसके लिए ही बने हैं, हम ही ऐसे हैं, मतलब हम ही उस चीज, मतलब हम लोग जब हम मेडिसिन खाते हैं ना, जब देखो कोई भी लाइफ में, मैंने जैसे बताया कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में कभी बीमारी ना आई हो, लाइक किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर किसी को सर में दर्द है, फीवर है, ठीक है, डायबिटीज है,
लेकिन हम उससे छुटकारा पा लेते हैं बाई मेडिसिन खा के या कुछ भी। लेकिन जब हमें डिप्रेशन होता है तो हम सोचते हैं हम है ही ऐसे, ठीक है। हम मैंने बहुत लोगों को सुना है, मतलब मैंने इस पे बहुत वर्क किया है, तो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि चीज कि हम ना है ही ऐसे, हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब हम ओवर थिंकिंग है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमें छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो हम नहीं है वो, ये एक बीमारी है जो हमें बहुत सारे तरीकों से सही हो सकती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी सारे तरीके, अभी मैं बस अभी मैं वो बता रही हूँ कि क्या क्या होता है लाइफ में, ठीक है। बिहेवियर ऐसे ही कि अपने नेल्स देखो, आपने देखा होगा बहुत लोग नेल्स बाइट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और ऐसे सोचते रहते हैं, ठीक है, और स्किन निकालते रहते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है उन्हें फोकस करना किसी भी चीज पे, वो फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। एक चीज और पता है, जो डिप्रेशन और ये स्ट्रेस है और ये फिजिकल नॉट वेल बीइंग, ये ना ओनली डिपेंड कर, ये 5 साल के बच्चे में भी पाई गई है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार ये 5 साल के बच्चे में भी पाई गई है, मतलब इसका एज और किसी भी चीज से कोई मैटर नहीं। इससे बहुत लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेस और ये एंजाइटी ये तो अमीर लोगों को होते हैं, मतलब गरीब लोगों को नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये सब, मतलब ये चीज देख के नहीं आती, ये सबको सबको है, किसी को कोई छोटे लेवल पे, किसी को बड़े लेवल पे, वो कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। और जैसे अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ अबाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि आजकल की जो लाइफ है उसमें हम अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाते। हम या तो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से शेयर करते हो, लाइक अपने कलीग से शेयर करते हो, अपनी सिस्टर, कोई तो वेलबींग होगा पर्सन, ठीक है, अगर आप उससे शेयर करते हो ना, तो लिटरली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हल्की सी भी लग रही है ना कि हाँ ये हो सकता है, अपने दिमाग में नहीं सोचिए, आपको किसी से ही बात करनी चाहिए, अपनी मम्मी से या पापा से, हस्बैंड से, किसी भी रिलेटिव से, या फिर कोई भी वेलबींग आपको लगता है कि हाँ मैं इस पर्सन से बात कर सकता हूँ, तो बात करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जमाने में ये एंजाइटी और ये मेंटल सुसाइड पॉइंट्स क्यों होते थे कम, क्योंकि पहले ना सब बैठ के बातें करते थे, डिनर के टाइम पे, खाने के टाइम पे सब बैठ के बातें करते थे। लेकिन अब क्या है, चेंज हो गया है बहुत सारी चीजें। अब कोई भी किसी से बात कर, अब कोई भी किसी को टाइम नहीं है फर्स्टली तो, बट टाइम हमें निकालना चाहिए अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए, उससे क्या सॉल्यूशन निकलते हैं। हो सकता है कि आपने वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बना रखी है, ठीक है, हो सकता है आप उससे बात करके वो छोटी कर लेते, ठीक है, तो वो चीज है। अब सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड स्मार्ट गोल, जैसे बहुत एग्जांपल भी है कि हमें स्मार्ट गोल बनाने चाहिए, रियलिस्टिक रियलिस्टिक बनाना चाहिए, हम भी रियलिस्टिक, हमें हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब बहुत से लोग मैंने देखा है कि मेरी फ्रेंड थी खुद की, वो ना अनरियलिस्टिक अप्रोच बनाती थी कि मेरे को ये करना है, और वो अपने आप में ही खोई रहती है। उससे क्या हो, कहीं कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अनरियलिस्टिक अपने मन में ही सोचते रहते थे कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। तो वही कि अपने गोल्स ऐसे बनाओ पार्ट्स में, कि हाँ ठीक है आप टॉप तक पहुंचोगे, लेकिन धीरे 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 आप उसे ऐसा बनाओ कि आप उसे आराम आराम से पहुंचो उस गोल, ठीक है। लर्न टू से नो, ठीक है, डोंट टेक टू मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट। लाइक जैसे मैं ऑफिस में थी, मैं आर्टिकलशिप में क्या करती थी, मेरे पास इतनी इतनी फाइलें होती थी, इतनी इतनी फाइलें मैं पढ़ती, इतनी फाइलों पे मैं काम करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को कभी ना कहना नहीं आता था। सर ने बोला ये भी कर लोगे, हाँ मैं ये भी कर लूंगी, ये कर लोगे, हाँ ठीक है मैं ये भी कर लूंगी, बैलेंस शीट में मैं डालूंगी ये, तो पूरे ऑफिस का काम मैं अपने पास रख लेती थी। तो उससे क्या होता है कि आपके पास इतना काम हो जाएगा ना, तो आप, मतलब अगर आपने नो कहना नहीं सीखा किसी चीज के लिए, तो आप वो डिप्रेशन का शिकार होगी किसी दिन। क्योंकि आप, आपकी एबिलिटी नहीं, आप सारे काम नहीं कर सकते, आप किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपको लगेगा कि हाँ कि मैंने ये नहीं किया। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ना कहना आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑलवेज यस करोगे, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि उनका मन नहीं होता वो काम करने का, लेकिन वो कहते हैं ठीक है मैं कर लूंगा। फिर वो दूसरों से मतलब इधर उधर चिट चैट करते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया, मैं ये नहीं कर सकता, और बट लेकिन हमें नो कहना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी हम एक उसमें ना रखें, ठीक है। तो हमें नो कहना आना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीवेयर। अब एटीट्यूड क्या है ये, अब क्या होता है कि हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक लाइन ऐड ऑन करना चाहूंगी कि 10% ऑफ द थिंग्स विच हैपन एंड 90% इज व्हाट वी ट्रीट विद देम, ठीक है। तो 10% तो चीजें होती हैं, 90% हम उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसे कैसे हैंडल किया है। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड के रिगार्डिंग, कि एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्चा और एक पापा दोनों जा रहे होते हैं पहाड़ों की साइड में। तो वो बच्चे को हाथ पकड़ के उसका पेरेंट्स उनके लेके जा रहे होते हैं, तो वो एकदम से गिर जाते हैं।
तो एकदम से बोलता है आउट, मतलब कुछ ऐसी आवाज निकालता है जैसे पूरे में वो गूंज जाती है, वो ऐसी जगह पे होता है कि वो बैक आवाज आती है, तो वो सेम आवाज आती है। तो वो बोलता है "ये मुझे गाली दे रहा है", तो फिर वो दोबारा गंदा वर्ड बोलता है कि क्या है, तो वहां से भी क्या है आवाज आती है। तो फिर उसके जो पापा होते हैं वो एक बहुत अच्छे से बोलते हैं कि आई लव यू, तो वहां से भी आई लव यू बैक आवाज आती है। तो वो कहते हैं ये तो अच्छा बंदा है। तो उसके पापा कहते हैं जैसा आप करोगे ना, जैसे किसी को देखोगे, वो आपके बारे में ऐसे ही थिंकिंग करेगा। सो दैट इज द एटीट्यूड। अगर आप किसी को अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। अगर आप किसी को गंदे बुली कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो, तो वो भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा। तो वहां भी आप डिप्रेशन नहीं होगी कि आपको लगेगा कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने मेरे इतना बुरा किया। तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग एटीट्यूड करोगे, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है। स्लो डाउन। हमें आज इतनी मतलब दौड़ भागे लाइफ में कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, धीरे धीरे चलो। आप देखना, मतलब ये मेरा लिटरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम किसी चीज को मतलब धीरे धीरे अचीव करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बहुत स्पीडली उसको कर रहे हैं और हम एकदम से नीचे गिरते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें ना किसी भी चीज को बहुत धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि हम तेज कर रहे हैं ना, तो ना तो वो अचीव हो पाएगी और हम बहुत परेशान रहेंगे लाइफ में। मतलब आप धीरे धीरे करो किसी भी चीज को, ऐसा नहीं कि आपको सीधा ही ऊपर जाना है। राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रिपरेशन भी आपको बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। जैसे मान लो किसी को स्टेज फियर है, तो वो क्यों है? अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, अगर आपने प्रॉपर अपने नोट्स और प्रॉपर सारी चीजें बनाई हुई है, अगर आपके पास टॉपिक कंटेंट है, तो आपको स्टेज फियर नहीं लगेगा। राइट। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अभी से, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसे कैसे आप हैंडल करेंगे। तो आपके पास पूरे प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, एवरीथिंग होनी चाहिए। तो आप तभी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। बेसिकली आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो आपको होगी डिप्रेशन होगी, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। पर लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि हमें 6 बजे ही उठना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। नो, आप जब भी उठ रहे हो, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो इसी में डिप्रेशन हो जाओगे कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है, तो वही आपके लिए डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो एनी टाइम, मतलब मैं ये नहीं बोल रही, देखो मेडिटेशन तो कभी भी कर सकते हो। मेडिटेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो मेंटल स्टेट है, मतलब मैंने खुद ने ये चीज नोटिस करी, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैंने खुद ने 6 महीने ये करके देखा है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। इससे ना आप अपने आप को ना बिल्कुल चेंज पाओगे 6 महीने बाद। आप ये करके देखना, मतलब बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन करोगे तो वो भी मतलब 5 मिनट्स मेडिटेशन, स्टार्टिंग में आपका 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट होगा, ऐसे करके आप 5 मिनट्स तक इसे लोगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम, आपको बहुत हैप्पी फील होगा कि हमें लाइफ में कितना कुछ है, हमारी लाइफ में कितना कुछ हमें मिला है, लाइफ में हमें भगवान ने कितनी चीजें दी है। ठीक है। और जरूरी है हम उन प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती है, आपका फोकस एक तरह से एक सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। अपना ध्यान रखो। इस जो टूडेज वर्ड है, टूडेज जो आज का जो लाइफ है, अपनी हमें अपनी टेक केयर करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, हमें बस 9 to 5 की जॉब करनी होती है, कि हमें बस जाना है। तो हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हेल्दी चीज खाने से बहुत फर्क पड़ता है सारी चीजों में। हमें मतलब माइंड हमारा अच्छा होता है कि हमें हमें क्या पसंद है। ठीक है। एक हमें ब्रेक भी लेना चाहिए। हमें ना अपनी लाइफ में 9 to 5 जॉब, जो भी हम 9 to 6 कर रहे हैं, ठीक है, हम सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई हम तो सीरियस है, हमारी तो डेडलाइंस होती है, तो हम तो ब्रेक कर ले ही नहीं सकते। बट लेकिन रियली में अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके करोगे ना काम को, तो वो एक फ्रेशनेस फील होती है। कोई भी काम करने में एक फ्रेशनेस फील होती है। हम उसको फिर वही हमारा 8 घंटे का काम 4 घंटे में होगा, और हमारा माइंड एकदम स्ट्रेट रहेगा, और हमें टाइमली काम करेंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है। मी टाइम क्या होता है? हमें मी टाइम निकालना चाहिए। मी टाइम जैसे कि मान लो, देखो सबकी ना हैबिट्स होती हैं। इन पास्ट किसी ना किसी की कोई हैबिट होती है, जैसे गिटार बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, किसी की फुटबॉल, क्रिकेट। तो हमें, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा टाइम उसी हैबिट को दे दो, बट थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, जिससे कि हम ना जो हमारी प्रॉब्लम्स है उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। हमें लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। तो रियली है कि बहुत अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ा सा भी अपनी उन हैबिट्स को टाइम देते। लाइक जैसे किसी की पेंटिंग करना होती है, तो पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग से वो बिल्कुल डिफरेंटली सोचते हैं। ठीक है। और सेकेंडली, हमें अपने जो कलीग्स हैं, हमें कभी भी ना, अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बहुत डिप्रेशन में है, कुछ हो रहा है हमारे सामने, तो हमें उससे बोलना चाहिए कि आई एम विद यू। मतलब उसकी ना आधी प्रॉब्लम्स भाग जाती है। उस आप किसी पर्सन की लाइफ सेव कर सकते हो ऐसे, क्योंकि ऐसे लोग ना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो जैसे सुसाइड है और भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो इस टाइप से हमें केयर करनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जैसे आप कोई भी काम, जैसे अभी आईटीआर का टाइम आएगा, ठीक है, राइट, हम क्या सोच रहे हैं कि हम आईटीआर भी कर लेते हैं, जीएसटी के रिटर्न का टाइम तक, जैसे टाइम जीएसटी की रिटर्न है, ठीक है, आईटीआर की डेट है, और ये तो हम क्या करेंगे, हमें सारा काम कि हमें अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, वो एक भी काम नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि हमें एक नोट, कॉपी नोट, जो भी एक पेन कॉपी लेना है, उसमें बनाना है कि हमें पहले टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, फिर हमें जीएसटी की करनी है। मतलब मैं ये छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी सीए प्रोफेशन से रिलेटेड एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी जिसका जो भी काम है, लाइक घर के काम भी होते हैं, हमें हमेशा टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। अगर हम ऑर्गेनाइज रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा तो हमें स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हमें स्ट्रेस जरूर आएगा, ठीक है। तो लेट बायगोस बी बायगोस। अब हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि ये हो गया मेरे साथ, तो हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना बहुत ज्यादा। हमें वो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में कुछ हो ही नहीं सकता उसके बारे में, हमें आगे का सोचना चाहिए। अगर हम आगे का सोचेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको, उससे हम निकलने की कोशिश करेंगे। तो डेट द पॉइंट, ठीक है। पैशन, अब हर किसी का पैशन, जैसे पैशन के बारे में तो बता ही दिया मैंने, हर किसी का पैशन होता है। तो आपको वो धीरे 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 करना है, मतलब पैशन के बारे में धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम निकालना है, लाइक 1 आवर निकाल लिया, 2 आवर निकाल लिया। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे यही टाइम निकालना है, मुझे तो सुबह 6 बजे उठ के निकालना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको उसी में स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, आप थोड़ा सा उसे करना चाहिए। और हमें जैसे हमारा हॉलीडे पे जरूर जाना चाहिए, लाइक 2 डेज 3 डेज अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें सॉल्व आउट होती हैं। लाइक हम उनसे बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। स्लीप वेल। अब क्या होता है, आज क्या होता है कि कोई नोटिफिकेशन आई, हम सोने लगे 9 बजे, हमने सोचा कि आज हम 11 बजे सो जाएंगे। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है कि हम 11 बजे 10 बजे हम सो जाएंगे, 10:30 हो जाएंगे। कोई नोटिफिकेशन आई इंस्टा पे, वो रील पे चली गई, और फिर 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है सोने में, और वो 1 बज गया, फिर उसके बाद सुबह उठना, मतलब सुबह भी अपना टाइम से उठना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप मतलब मैंने खुद ने ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि अगर हम टाइम से नहीं सोते और टाइम से, मतलब टाइम हमें 8 आवर्स की नींद कंप्लीट नहीं हुई हमारी, तो हमारा अगला ऑफिस का दिन खराब हो जाता है। मतलब हम ऑफिस में ना किसी भी काम को डेडिकेटली नहीं कर पाते हम, या तो मतलब हमारा माइंड में कुछ ना कुछ और चलता रहता है। अगर हम स्लीप अच्छे से सो रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, तो हमारा बहुत सही दिन जाता है, मतलब अगले दिन ऑफिस का अच्छे से पूरा प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। कनेक्ट कनेक्ट सोशली, आप लोगों से बात करो, मतलब जैसे कोई वेबिनार है, सेमिनार में जाओ, आप लोगों से बात करो, आपको पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, मतलब कितना कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो आप जो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है, आप उनसे दूर भाग जाओगे। आपको लगेगा कि यार लाइफ में तो बहुत, मतलब लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, मतलब इतनी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, हम छोटी सी प्रॉब्लम्स में खामखा अटके हुए हैं, हम इसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, या फैमिली इशू के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट, सोशली कनेक्ट रहें, सबसे बात करें, तो ये आपकी हेल्प, बहुत हेल्प करेगा। अब टेक्निक्स लाइक जैसे माइंडफुलनेस, आजकल वो प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे कनिका मुझे भेजती रहती है बहुत सारे माइंडफुलनेस के प्रोग्राम्स, तो अब वो भी ज्वाइन कर सकता है। अगर जैसे किसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब वो निकल ही नहीं पा रहा। आजकल ना बच्चों में स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा एक बेबी है तो मुझे पता है स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम है। तो स्क्रीन टाइम से भी ना बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। अभी तो वो छोटा है तो अभी तो वो देख लेगा, बट बाद में वो ना स्ट्रेस में जाने लगते हैं, जब जब उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप स्क्रीन टाइम ज्यादा देख रहे हो, हम खुद ही, आप अगर आप कोई मूवी देखते हो ना रात को 11-12 बजे, आपको रात को सपने में ना उसी के सीन आने लगते हैं, मतलब वही चीज आपकी लाइफ में होती रहती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ होता है तो, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई मूवी देखी या मैंने कोई स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देखा, तो मेरे को सपने में भी मतलब वही दिखता है। तो वो चीज है कि अगर हम स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए थोड़ा, मतलब स्क्रीन टाइम इज बहुत प्रॉब्लम करता है। तो डीप ब्रीथिंग, हमें कभी समटाइम्स ना बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे अगर आप डीप ब्रीथ करोगे तो उससे बहुत फायदा होता है। लाइक डीप, थोड़ा सांस को रोकना, डीप ब्रीथ करके फिर आप लेना, तो उससे आप मतलब उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। मतलब स्ट्रेस का नहीं पता, पर रिलैक्स बहुत फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प स्ट्रेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की, हम टाइम को ऐसे ही कहीं भी वो कुछ कर रहे हैं, और फिर जब हमारी, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हमें किसी ने बुलाया और हम उस टाइम को ऐसे ही खराब कर रहे हैं, और हमें 9 o'clock पहुंचना है, हमारी हैबिट ये है कि हम 8:30 घर से निकलते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। आप कहीं भी जाओगे ना, अगर आप 15 मिनट पहले जाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा,
मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। अगर आप बिल्कुल एट अ टाइम जा रहे हो कहीं भी, तो डेट इज अ प्रॉब्लम। तो आपको जरूर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। जैसे आप मान लो कहीं भी आप कोई स्टेज पे कोई सेमिनार देने जा रहे हो, या फिर आप कहीं भी कहीं जा रहे हो, तो आप 15 मिनट पहले का लेके चलो, तो उससे आपका सच में बहुत फायदा होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करो, मतलब रेगुलर अगर टाइम नहीं है तो आप बीच में 2 टाइम करो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, स्लीप, एडिक्वेट स्लीप लो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए। अच्छा, वर्क प्लेस पे क्या इसका मैटर है? तो वर्क प्लेस पे क्या होता है कि देखो प्रोडक्टिविटी तो कम हो रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि वो 3 लोग थे, एक को डिप्रेशन इतना हो गया। तो पता है उसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें कलीग्स को आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना जो कॉर्पोरेट एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना पॉलिटिक्स बहुत होती है। मतलब मैंने खुद ने जॉब की है एक आईटी कंपनी में, एक, अच्छी कंपनी थी आईटी कंपनी। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ना आपस में पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, जिससे आप निकल नहीं सकते। तो हमें क्या आपस तो एम्प्लॉयर को क्या है कि ना उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जैसे कोई भी सपोर्टिव, जैसे एक फीडबैक लेना चाहिए। लाइक कि जैसे हमारे सर की, हमारे सर थी, उनकी आदत थी वो फीडबैक लेते थे। तो हमें हमें अपने ऑफिस में भी ये करना चाहिए। जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं, तो हम भी ये करते हैं, हम एक फीडबैक जरूर लेते हैं महीने में एक बार, या फिर हम स्टाइपेंड देते हैं। तो हम फीडबैक लेते हैं कि आपको मतलब क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों ने बोला कि 6 बजे के बाद हम काम नहीं कर सकते। हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ सकते हैं 9 बजे या 8 बजे, पर हम लेट नाइट, मतलब लेट नाइट काम नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एम्प्लॉयज डिवाइड कर सकते हैं। जिसको 6 बजे के बाद काम नहीं करना उसको 9 to 6 दे दो, और वरना दूसरे एम्प्लॉय है उससे बात करो कि भाई मुझे नाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं मॉर्निंग में नहीं आ सकता क्योंकि मॉर्निंग में जागा नहीं, तो उसको थोड़ा लेट बुला लो। मतलब उसे 11 से 7 o'clock या 8 o'clock बुला लो। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं वर्क प्लेस को। ठीक है, लाइक और क्या है, प्रोमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में, मतलब एम्प्लॉयज का भी, कि उनसे हमें बिल्कुल अच्छे से बात करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत इश्यूज आते हैं। हमें हमें ना एक मैंने वो भी बनाई थी, एक वो पीपीटी खोल नहीं थी, तो उसमें हमें, एक सेकंड, मैंने तो इसमें, हाँ, हाँ, एक चीज और, आजकल जो जो हमारा ये है ना, जो प्रॉब्लम है ये वाली, फिजिकल प्रॉब्लम है, जो फिजिकल मेंटल मेंटल इशू है, वो 1 in 5 एडल्ट है। मतलब 5 एडल्ट में से एक बंदे को पक्का स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। मैंने ये बनाया मेंटल हेल्थ इश्यूज अफेक्टेड, मैंने एक पीपीटी बनाई थी ये। हाँ, हमें ये करना चाहिए मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी। तो वर्क प्लेस में हमें क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट वेलबींग प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे कि वर्क लाइफ बैलेंसेस कैसे हो सकती है, स्ट्रेस स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। मतलब फ्राइडे को ये नो मीटिंग है, जो भी है ये काउंसलिंग का होना, मतलब बड़े बड़ी जो आईटी कंपनीज है उनमें ये होता है। तो ये पीयर सपोर्ट प्रोग्राम होता है कि मेंटल हेल्थ की आपको क्या प्रॉब्लम है, वेलबींग प्रोग्राम चलाने चाहिए। फिजिकल हेल्थ केयर सर्विसेज भी होनी, जैसे फर्स्ट एड किट होती है ना एवरी ऑफिस में, वैसे ये भी होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंगली WHO ये सब होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये हमारी वर्क प्लेस रिलेटेड चीज है। सी प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटीज। आप अगर प्रॉब्लम को एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, जैसे पेंसिल है, आप कोई तो इसको देखेगा और टूट गई, तो वो मेंटली हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन एक बंदे ने क्या किया, वो पेंसिल को सही किया। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज देखो, आप हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखो, तो उससे भी आपका खत्म होगा ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब वेलबींग, हमें वेलबींग हमें इसको करना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग आर नॉट गिविंग यू स्ट्रेस, योर मीनिंग ऑफ द इवेंट इज गिविंग यू स्ट्रेस, राइट? मतलब सारी चीजें आपको स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन आप उसे कैसे, मैंने जैसे बताया था कि 90% ऑफ द थिंग्स की हम उसे डील कैसे कर रहे हो, 10% तो चीज हो रही है हमारे साथ। तो वैसे ही है कि हमें वो देखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ हो कैसे रहा है, राइट? तो जब बदलती है नजरें तो बदल जाते हैं नजारे, राइट? हम जब हमारी जब इस चीज को देखने की क्षमता, कि हम उसे कैसे देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका पूरा सारी चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आपको एक चीज और है मेरी छोटी सी, मेरे को अच्छा एक चीज और, हमें वर्क प्लेस पे अगर देखना है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं कि वो स्ट्रेस में है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि वो मोस्टली लेट आ रहे हैं, वो किसी ना किसी कोई रीजन दे रहे हैं कि भाई मैं
मतलब मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है उनकी। मतलब वो पूरा काम मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, ठीक है। डीऑर्गेनाइज्ड है वो, इन एरर, बहुत सारी बैलेंस शीट्स है उनमें, बहुत सारे गलत चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चा है जो कि पूरा प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है लेकिन धीरे धीरे वो डिक्रीज में जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसको देखना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है rather than डांटने के अलावा, ठीक है। तो वो चीज है। ये आपकी साइन मैंने बताई दी है कि डिफिकल्टी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है, और हम लोगों से मिलने में कतराते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों से मिलने में भी बहुत सोशली हम मिलना नहीं चाहते लोगों से, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को पेन है, यहाँ पे पेन है, या फिर हम एंगर को डिस्प्ले कर रहे हैं लोगों के सामने, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो वो चीज, सारी चीज हमारी है कि हम कैसे किसी चीज को कैपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग जॉय एंड मीनिंग आउटसाइड द वर्क, ठीक है, हमें अपना इसका कैसे केयर करनी है हमारी मेंटल हेल्थ की। तो वो ये कि हमें हर चीज में ना अच्छा ही ढूंढनी चाहिए, हमें हर चीज में जॉय ढूंढना चाहिए, और कि वर्क मतलब ये नहीं हम काम करते ही नहीं सारा दिन, हमें थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा सा आउटसाइड लाइफ को देखना चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज, हमें अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि हमें 9 to 5 ही हमें कोई अटेंड करनी है कॉल। अगर हम जैसे हम सीरियस हैं तो हमारे पास तो रात को 10 बजे भी क्लाइंट कह देगा कि पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, ठीक है। तो हमें एक बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए कि भाई हम 9 o'clock के बाद आपका फोन नहीं उठाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हमें ऐसे करके बाउंड्री सेट करनी चाहिए। कनेक्टेड भी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया, सोशली हमें कनेक्टेड होना चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस, जाओ होलिडे पे जाना चाहिए लव्ड वन के साथ में, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है, अपनी हैबिट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। टाइम इंक्रीज टाइम अब मान लो मैंने छुट्टी ले ली ऑफिस से, ठीक है, अब मैं अगले दिन ऑफिस आई, मैंने कहा यार मैंने क्यों ऑफिस से छुट्टी ले ली, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इंजॉय, हमें प्रॉपर, अगर हमने छुट्टी ली है तो हम यही बोलेंगे कि हमने इंजॉय किया, rather देन कि हमने छुट्टी क्यों ले ली, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए वर्क के टाइम पे, हमें शॉर्ट ब्रेक्स भी लेने चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक मैंने बता दी है, आजकल एरोमा थेरेपी भी बहुत चल रही है अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो। और ये इसका मेंटली स्ट्रेस का मतलब यही नहीं होता कि हमें काउंसलर के पास जाना है, अगर आप किसी से बात करोगे कलीग्स वगैरह से तो उससे भी आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। हेल्पिंग पीपल अराउंड, अगर आप कोई कम्युनिटी किसी बच्चे को पढ़ाते हो, एनजीओ में आप हेल्प आउट करते हो, तो उससे भी देखना आपको बहुत सुकून मिलेगा, किसी किसी को बहुत सुकून मिलता है इन सब चीजों से ना। तो वही चीज है। तो सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। आप किसी की कोई क्वेरी है तो आप मुझे एक बार बता दीजिए। Thank you so much, Pooja. It was very wonderful session. Though I am doing meditation daily from so many years, but still I have gathered so many things. But before that, if anybody is having any query, please आप chat box में भी लिख सकते हो, नहीं तो you can ask on the floor also. Otherwise, we can invite our sir, Sumit sir, for we missed him calling in the start of the session. So Sumit sir, hand over to you. Think there might be some issues in connectivity, so इसमें किसी की I कोई would इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप no शेयर कर problem. सकते हो। But I can recollect it, Pooja. I able to gain many things like connecting with the people. Go slow. Try to say no. If you are not able to say no, ask time for it. And effective communications, taking यस, your ownership, me time, sleep, meditation, everything you given us very in good way. So everybody on the webinar, like I am going to give you a link where you all will be having a quiz type of thing. But if anybody get 100%, then there will be a gift from my side. And so आपको ना स्क्रीनशॉट लेना है उसका, जो भी आपका परसेंटेज आएगा. इट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. So Pooja has deliberated all the things, how to manage stress, how to have things. But do you know, आपको लगता है कि आपके पास stress नहीं है, but I'm 100% sure everybody is having a stress. Pooja said 1 out of 5, but I think 5 out of 5 people are having stress.
So I am going to paste link. Everybody, like including Pooja, including me also, we will be doing this self-assessment test. हाय पूजा, वेरी नाइस सेशन। मैं इसमें एक चीज और कि आपका सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा और कई सारे पॉइंट्स वापस रिकॉल हुए जो मेरे को लगता है कि जिसने भी आज सुना है उसमें कई सारे पॉइंटर्स अपने टू डू में भी हमने अपने टू डू में भी अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी हमें ऐड करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, कई बार स्ट्रेस के लेवल्स काफी ज्यादा हो जाते हैं और फिर हमें जब भी शेयरिंग इज केयरिंग या फिर आपने बताया किसी से बात Yes. करके हम उसको लिटरली वो चीज लोग भूल जाते हैं। बिकॉज जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में आज के डेट में रह रहे हैं तो काफी सारे इनपुट्स अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए वो और ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगा। Thank you so much, Harshit. Thank you so much, Archit, for your inputs. I think you were the only person who were owning, like Yeah. keeping your video on. Thank you so much. Like being an active listener, it is very important, like giving attention to the Yes, speaker. yes. Okay, so Hmm. I have pasted that link. You all can start. It has 20 questions. So I'm going on mute. Guys, if you are done, you can write your percentage in the chat box. I got 67%. My God, Ankita has got 58%. Good. I believe you filled it out honestly without giving a second chance. 55 Kajal, 8. 60% Shubham. Good. Because you are living with Pooja, that's why your mental health is far better. 60%. Might be. How about you, Harshit? वर्क इन प्रोग्रेस से पढ़ रहा हूँ। Okay. You're taking time. I 67. think you are analyzing more. Other guys, Ashaji, मार्क्स खराब Siddhant, भी हो सकते हैं। Nishant. No problem. This is just a
honest review, like how much time you're giving to your mental health, and based on that, prompt, it should be prompt. I understand CA में जाके we are into like more analytical thing, like बहुत सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं. 71. Great, great. I think you gave more Exemption time, तो आई so गई. I think great. Exemption तो आई गया. What I does think this after percentage Pooja, means? Higher the percentage means higher the stress or lower the stress? lower the stress. Lower. Oh wow, I Harshit. think you are not. I think now we can invite Sumit sir if he is able to listen. Hello sir, over to you. जी कनका जी. हेलो सर. Hi. And I Sir, think wonderful आपका मैसेज discussion. नहीं आया वो स्ट्रेस का, वो आप भी कैलकुलेट करके देखिए अपना. नहीं पूजा जी, मैं एक्चुअली आउट ऑफ ऑफिस था तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, और आई थिंक आशा जी ने किया हो शायद. मैं एक्चुअली मोबाइल पे कर रही हूँ, तो मैं बैठा नहीं मेरा मामला सेटल वहां पे ना, हाँ, इधर उधर राइट करने राइट. के लिए क्लिक कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था. मैं शायद से अच्छा, कोई सभी एक और लोगों ने क्लिक कैलकुलेट नहीं किया है, तो होगा. इट्स वंडरफुल डिस्कशन. यहाँ पर पूजा जी ने बड़ी अच्छी इनपुट्स दी. एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो Exactly. सर्विस सेक्टर में है, जहाँ पर मेंटल पावर से ही हम अपना मेंटल बिजनेस एक्सपेंड करते हैं. सर्विस सेक्टर में मेंटल फिटनेस यदि नहीं होगी तो हम अपनी सर्विसेज को अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको पूजा जी ने बड़ी अच्छे से एड्रेस किया. एंड अभी जो टेस्ट भी था, मैं ट्राई करूंगा कि इसे बाद में लेटर ऑन जरूर मैं अटेम्प्ट करूं और Sure, जरूर we are सुनूं एक बार. desperate to know. एंड कनका, थैंक यू फॉर योर मोडरेटिंग टुडे सेशन. एंड मेनी मेंबर्स, हर्षित भाई को भी देख पा रहा हूँ, निशांत जी, सचिन जी, सो सभी ने जो एंजॉय किया सेशन. सो ग्रेट, गुड चेयर टू पूजा फॉर वंडरफुल डेलिब्रेशन. थैंक यू सर. Asha, you want to add anything? Hey, Sumit ji, you already added all the more important points. Thank you. So that was Thank a you. wonderful session and very much important insights, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करें. एक्चुअल में प्रॉब्लम वही आती है, बिल्कुल सही, कई बार ये पता नहीं लगता कि आप एक्चुअल में स्ट्रेस में हो. ये जान पाना बहुत अपने आप में बहुत मुश्किल बड़ी, तो आपने इसको बहुत अच्छे से एक टैकल किया, बहुत Tackle अच्छे किया. समझाया. थैंक यू एंड आई एम श्योर कि काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी ये सेशन हम डालेंगे तो ऑब्वियसली more and more Sure. people will watch this. And So over to you. let's conclude the today's session. Thank you, Pooja, Tanka, and all for joining. Now Thank time you to close. everyone. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. everyone for joining this session and listen Thank you. carefully. Thank you so much everyone. Thank you.